Okay. Now, first of all guys, let's discuss the next important point, that how Magad became the most powerful Mahajanpada. So, first of all guys, first among the 16 Mahajanpada, I will be discussing with you ki how Magad became the most powerful Mahajanpada. So, now let's discuss ki how Magad became the most powerful Mahajanpada. So, how Magad became most powerful Mahajanpada. So, first of all, we will discuss the reasons ki how Magad became the most powerful Mahajanpada. What were the reasons? Okay, very good, Anima. So, what were the reasons ki why Magad became the most powerful Mahajanpada? So, we will discuss with you the reasons. I will discuss with you the reasons. I will discuss with you the reasons. Now, the first reason is availability of iron. Availability of iron. So, iron guys, you will find that ki iron ores, iron mines, they were presented in the Jharkhand region. So, we have the availability of iron in Magad, because Magad area comprises of the areas of Jharkhand also, and in Jharkhand, so you will find that ki Magad comprises of the Jharkhand also, and the Jharkhand region, Jharkhand, modern day Jharkhand is rich in iron ore, and from iron ore you can have iron, and from iron what you can make? You can make good quality of weapons. So, from iron, good quality of weapons can be made. This will ensure the defense, this will improve the defense system, improve the defense system of Magad, or defense mechanism of Magad. So, first is availability of iron. Next is fertile region. Fertile region. You will find that guys ki the maximum Magad region, it is in the Ganga plain. So, it is in the Ganga plain. So, Magad region is located, or simply you can write in this way, Magad region is located in Ganga plain, is located in Ganga plain, and you will find that since it is located in Ganga plain, and Ganga plain is a fertile area, so Ganga plain, it is a fertile area. Fertile area, so agriculture will progress. Agriculture will progress. And during the ancient time period, my dear friends, agriculture was like a backbone of economy. So, if agriculture will progress, and since it is a backbone of economy, so economy of Magad will progress. Economy of Magad will be empowered. Economy of Magad will be empowered, and once the economy of Magad will be empowered, definitely it will help to become a strongest Mahajanpada. Third is the
availability of forest. Third is availability of forest. Now, how forest is used to help? So, first of all, guys, forest was a natural divide. So, it was a dense forest. Dense forest were around Magadh region. Magadh region. So, dense forest was around Magadh region. So, dense forest, what it will provide? It will provide a natural hideout for the Magadh. If enemy tries to enter in the Magadh, they can enter in the forest, but forest is like a disguise. Forest is like a disguise. You will not be able to know कि from which side you have to enter, from which side you have to take exit, so that you can go inside the main area of Magadh. And once you are not being able to identify the routes, you can easily be ambushed. देखो फॉरेस्ट कैसे मदद करता था. एक तो घना जंगल है. घना जंगल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि मान लो कोई दुश्मन ने अटैक कर दिया, मगध के दुश्मन ने अटैक कर दिया, फॉरेस्ट में एंटर तो कर जाएगा, फॉरेस्ट में आराम से एंटर कर जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट अपने आप में डिस्गाइज होता है. घना वन था तो पता ही नहीं है कि एग्जिट कहां से लेना है. एंट्री तो पता चल गया, आप चले गए, एग्जिट का पता नहीं है कि कहां से हम एग्जिट लेंगे कि हम मेन एरिया में जा सकेंगे मगध के. तो पता चला कि आप फॉरेस्ट में ही खो गए, और मगध की सेना चूंकि वहां की ही सेना थी तो उनको तो फॉरेस्ट का चप्पा चप्पा पता है. अब उन्होंने करा क्या कि घात लगा करके मार दिया सैनिकों को दुश्मन देश के. तो यहां पर बेसिकली जो एक नेचुरल हाइड आउट हो जाता था, और दूसरा फायदा ये होता था कि द एनिमी कैन बी इजिली एम्बुश्ड. तो ड्यू टू द डेंस फॉरेस्ट एनिमी कैन बी इजिली एम्बुश्ड. तो वन अगर घना है तो एनिमी को आप इजिली एम्बुश कर सकते हो. एनिमी can be easily ambushed. एम्बुश का मतलब होता है घात लगा करके मारना. तो आप डायरेक्टली एनिमी को एम्बुश कर सकते हैं. प्लस एलिफेंट्स वर अवेलेबल. एलिफेंट्स वर अवेलेबल in those forest areas. And animals, and since elephants were available, they were used in war. Therefore, to introduce elephantry in war, Magad was the first Mahajanpad. Magad was first Mahajanpad to introduce एलिफेंट्री. एलिफेंट्री का मतलब होता है हाथी सेना. एलिफेंट्री का मतलब होता है हाथी सेना. अब देखो कैसे होगा. सबसे पहले दोस्तों इस घने जंगल में मगध के एलिफेंट्स मिलते थे, यानी हाथी मिलते थे. अब हाथी से क्या करोगे? तो देखो हाथी दो तरीके से काम आता था मगध में. सबसे पहले हाथी भारी भरकम जानवर है तो एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन भी यूज किया जाता था सामान ढोने के लिए. तो भारी भारी लकड़ी वगैरह ढोने के लिए काम आता था. दूसरा जो सबसे अच्छा मगध में इसका यूज होता था, दैट वाज इन द वॉर. तो यहां पर स्पेशली हाथियों की ट्रेनिंग होती थी कि हाथी पर जो योद्धा बैठ के लड़ रहा है वो भी लड़ेगा. साथ ही ये हाथियों को भी ट्रेनिंग देते थे कि मान लो दुश्मन देश का सैनिक गिर गया, उसी के ऊपर पैर रख दिया, और हाथी अगर किसी आदमी के ऊपर पैर रख देगा तो वैसे ही आदमी मर जाएगा. प्लस हाथी का जो ट्रंक होता था, जो सूंड होती थी, उसमें ये लोग शार्प एज वेपन बांध देते थे. और शार्प एज वेपन और हाथी से को जो उसका महावत है वो इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करता था कि वो तेजी से अपने ट्रंक को घुमाता चलता था. तो जो भी उसके आसपास छोटे मोटे सैनिक होते थे वो उन्हीं को काट देता था. प्लस कई बार हाथी जो दुश्मन के सैनिकों को सूंड में पकड़ के फेंक देता था लपेट करके. तो इससे भी मगध को बड़ा फायदा मिलता था कि भाई हाथी का सवार भी लड़ रहा है, हाथी भी लड़ रहा है. तो मगध बिकेम द फर्स्ट महाजनपदा दैट इंट्रोड्यूस्ड एलिफेंट्री इन द वॉर. हाथी सेना को लाने वाला मगध ही था. और बहुत ही कारगर लड़ाई होती थी कि हाथी भी लड़ रहा है, उसका
वॉरियर भी लड़ रहा है और साथ ही साथ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग महावत को मिलती थी, जो हाथी का ड्राइवर था, एलिफेंट ड्राइवर था, एलिफेंट ड्राइवर भी लड़ रहा है, यानी एक बीस्ट पर बिठाए तीनों लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। फोर्थ वाज द अवेलेबिलिटी ऑफ गंगा। फोर्थ वाज द अवेलेबिलिटी ऑफ गंगा। अवेलेबिलिटी ऑफ गंगा and its tributaries. Availability of Ganga and its tributaries. अब गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कैसे मदद करेंगे, सबसे पहले वो समझ लो। देखो गंगा है तो गंगा सबसे पहले एक फॉर्म ऑफ अ नेविगेशन कम्युनिकेशन, तो गंगा विल हेल्प इन द ट्रेड एंड कॉमर्स। गंगा के जरिए आप वाटर कम्युनिकेशन को आप इजी वाटर कम्युनिकेशन होगा, जिससे आपका ट्रेड बढ़ेगा, जिससे आपका ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रो करेगा। तो गंगा के जरिए आप सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वाटर कम्युनिकेशन के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसको आप फैसिलिटेट कर सकते हो। तो इससे आपका ट्रेड ग्रो करेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रो करेगा। दूसरी सबसे बड़ी फायदा होगी कि गंगा विल एक्ट एज अ नेचुरल बाउंड्री। सो इट गंगा विल एक्ट एज नेचुरल बाउंड्री एंड the Magad army used to make watchtowers to keep an eye over enemy movement, to keep an eye over enemy movement। अब देखो गंगा एक तरीके से नेचुरल बाउंड्री भी था, और नेचुरल बाउंड्री कैसे, तो मगध की आर्मी करती क्या थी कि एक वॉच टावर बनाती थी गंगा के बैंक पर, टू कीप एन आई ओवर एनिमी मूवमेंट। अब जमीन से मान लो अगर दुश्मन नहीं आ रहा है, तो जमीन से नहीं तो पानी से भी तो दुश्मन आ सकता है। जमीन से नहीं आ पा रहा है तो पानी से आ जाएगा। तो वहां पर करते क्या थे कि गंगा के बैंक्स पर वॉच टावर बनाते थे और उस पर सोल्जर्स होते थे, एंड सोल्जर्स दे यूज्ड टू इंश्योर कि सम एनिमी दे शुड नॉट क्रॉस रिवर गंगा, कि अगर किसी भी तरीके का नदी में मूवमेंट दिखा बोट्स का अदर देन ट्रेडिंग बोट्स, तो वो फटाफट से मैसेज सेंड कर देंगे कि सम फॉरेन पावर्स दे आर ट्राइंग टू इन्वेड अस, सो बी प्रिपेयर फॉर द वॉर। तो यहां से वॉच टावर के थ्रू वो मॉनिटर कर सकते थे एनिमी के वाटर मूवमेंट को। तो इन्हीं चार मेजर फैक्टर्स की वजह से फ्रेंड्स मगध became the most powerful empire. So these are the factors that led the Magad to become the most powerful Mahajanpada. So am I clear to all guys about how Magad became the most powerful Mahajanpada? Am I clear to all? One more reason was the hills, because the capital city was surrounded by hills. You can also note it down कि the capital city was surrounded by hills and it was very difficult to climb the hills to attack the capital. So capital city surrounded by hills and it was difficult to climb hill and attack the capital the capital city. It is also one of the reasons that the capital city was surrounded by 5 hills, and if you want to win the Mahajanpada you have to capture the capital. अगर महाजनपद को जीतना है तो राजधानी को कब्जा करो। अब राजधानी जो राजगीर थी उस पे 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब 5 पहाड़ी पे चढ़ना, वहां ऑलरेडी मगध के कैंटोनमेंट्स होते थे। सैनिकों ने मगध का देखा कि अच्छा कोई एनिमी दे आर ट्राइंग टू क्लाइंब द हिल, तो वहीं से वो आप पर
फायर करना शुरू कर देंगे, वहीं से आप पर पत्थर फेंकना या वहीं पर आपको अटैक करना शुरू कर देंगे। एंड वंस यू आर ऑन द हायर पोजीशन, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू टारगेट द एनिमी। तो अगर आप ऊंचाई की लड़ाई कर रहे हैं और आप हायर पोजीशन पर हैं, तो आप आसानी से एनिमी को टारगेट कर सकते हैं। इसलिए कैपिटल को जीतना बहुत मुश्किल था, बिकॉज इट वॉज सराउंडेड बाई 5 हिल्स। आई होप इट इज क्लियर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।